Assalamu alaikum, everyone, and welcome to the second episode of our podcast series, Shift Code Learn. I'm your host, Riaz, working here at Good Core Software as a manager, talent acquisition, and employer branding. In today's episode, we're talking about something that every professional wrestles with, and that's people. The topic today is managing up, down, and around, how to handle humans at work. Whether you're leading a team, managing up, or collaborating with peers, success often comes down to people's skills. Today's guest, Wasif Faruqi, uh, is a senior project manager with deep experience in navigating workplace dynamics. He's joining me from Doha, Qatar. Wasif, welcome to the show. कैसे हैं आप सर? Assalamu alaikum, Riaz. Thank you very much for inviting me. Always a pleasure talking to you. Interesting topic, isn't it? Because honestly, Yes. You can master tools, frameworks, softwares, and all those technical stuff, but nothing prepares you for managing humans, right? It's the one skill they don't really teach you, and that's the one that you actually need every single day of your work. बिल्कुल सही कह रहे हैं आप. In this podcast, we're going to discuss a few segments with Wasif. Obviously, he is a very experienced professional and he has managed different teams, different cross-functional teams as well. He's got a wealth of experience, more than a decade, I would say, more than 15 years in working with different software houses, working with cross-functional teams, and so on. So the segments that we are going to discuss in this podcast is managing your peers, managing direct reports, managing up, obviously, your bosses as well, managing indirect relationships, cross-functional teams, dealing with new joiners, and when you are the new joiner yourself. So, Wasif, what do you think about it? Yeah, so all these aspects that you just talked about are quite important, and some are we all deal with all of those in our day to day in our offices, but we don't actually think about all of them in these separate sections per se. But all of them have their own nuances, and we'll be discussing how to deal with all these things separately, inshallah. If let's start with peers as we discuss in the segments that we are going to talk, inshallah. तो peers के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं वासिफ. Those working at your level specifically, जो लोग आपके लेवल पे काम कर रहे हैं, sometimes थोड़ा सा tricky space होता है और formal hierarchy नहीं होती और बहुत सारी personalities भी बीच में होती हैं. तो ये भी देखा गया है कि competition भी आ जाता है बीच में. So how do you approach building strong, effective relationships with colleagues on the same level that you are in? Peer relationships में सबसे important चीज जो आ जाती है रियाज वो होती है balance and respect, right? We should always think like this, that someone's accessibility is not equal to availability. So what do I mean by that? It's like now we live in the MS Teams or Skype world or Zoom world. So people might be online at the same time, but they might be doing some other work, right? So you have to have that respectfulness that you are going to, if you are going to approach them, first communicate with them that I have something to talk to you, and then call them. The worst thing that can happen to one person is that when someone, especially in a software house, one person is doing some development work and then he's, fully involved in something, and then someone calls them on Teams immediately. The whole thought process, breaks. That should be something that you should actually take into consideration whenever you are going to communicate with any of your peers. सही. इसमें ये है कि एक simple छोटा सा एक message कर दें कि you're going to have a quick call if you're available. Can I call you? और अच्छा वासिफ ये भी देखा गया है कि different organizations में लोग weekend को या after hours भी reach out कर रहे होते हैं. तो we understand that कुछ projects जो हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और उनकी टफ डेडलाइंस होती हैं, लेकिन आपको लगता है कि ये प्रैक्टिस होनी चाहिए वीकेंड्स पे रीच आउट करना या आफ्टर आवर्स रीच आउट करना? Honestly, this is something that is on ground reality, इसको हम कह सकते हैं कि ऐसा होता है. But there has to be some kind of a informal communication between the team member that I am going to talk to you like this. For example, on a weekend, at the end of the week, let's say on a Friday, you already know that for some of your peers, you might be bothering them on the weekend. So it's
useful to let them know at the very end of the day that I might be contacting you on Saturday or Sunday. Please, bear with me on that day. Honestly, अगर आप इसको ऑफिशियल एस्पेक्ट से बात करें तो इट्स नॉट समथिंग दैट शुड बी एनकरेज्ड एट वेल एज वेल. And I have seen this is kind of a very subcontinental issue, if you understand my point, because all across wherever I've worked outside of Pakistan and India as well, they respect the weekend is something that is purely a personal thing, and they definitely ask you beforehand before basically contacting you. सही है ठीक है. Anything else that we should consider when interacting with peers? थोड़ा सा इसमें अगर रोशनी डालें आप. मेरे यार एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है और उसको जो है ना नॉर्मली ये कंसिडर किया नहीं जाता है, विच इज बेसिकली व्हेन यू आर गिविंग क्रेडिट टू समवन, स्पेशली योर पीयर, ट्राई टू डू इट पब्लिकली as much as you can. But when you are criticizing them or you want to give some constructive feedback to that person, always try to have that privately. This is something that builds confidence, that builds trust between each peers. और ये चीज जो है ना नॉर्मली एक समथिंग है जो कि लोग ख्याल नहीं करते इस चीज का, और उसकी वजह से आपको पता नहीं चलता आपका जो पीछे से जो ट्रस्ट लेवल विद योर पीयर्स है ना वो आहिस्ता आहिस्ता इरोड हो रहा होता है, और उस चीज को जो है ना थोड़ा सा कंसिडरेशन में लाना चाहिए. एंड आई वुड से एज प्रोजेक्ट मैनेजर्स दैट इज समथिंग जो कि प्रोजेक्ट मैनेजर्स को भी कंसिडर करनी चाहिए कि अपनी टीम में जो है ना ये इंस्टिल करें इस तरह की वैल्यूज जो है. तो वो एक एस्पेक्ट है जो कि नॉर्मली लोग इग्नोर कर जाते हैं, बट फॉर मी इट सीम्स लाइक, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि बड़ी इंपॉर्टेंट होती है. सही. सो आपने वेरी वेल सेड वासिफ, एंड आई वुड आल्सो अग्री, क्योंकि अक्सर देखा गया है आप जब क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं किसी को तो सबके सामने क्रिटिसाइज करना शुरू कर देते हैं, और जब उसको प्रेज कर रहे होते तो अकेले में प्रेज कर रहे होते हैं. तो ये आपने बहुत अच्छी बात की इसमें, एंड आई वुड एग्री ऑन दैट. Yeah, one more thing I will add here is that gossip is something जो के ऑफिसेज में बहुत होती है. Again, kind of some ground reality, let's say, but it should be discouraged at all levels, all the time. Gossip might be good for a very short period of time, but in the long run, it's always very damaging to the overall environment of an office. मेंटल हेल्थ भी बहुत डिस्टर्ब करता है, अगर इसके बारे में थोड़ा सा अगर बात करें. देखिए, मेंटल हेल्थ का तो वो एक एस्पेक्ट है ही जो कि हमारे इस रीजन के अंदर इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचा नहीं जाता, तो वो तो एक एस्पेक्ट है ही. लेकिन ओवरऑल आपकी ऑफिस पॉलिटिक्स जो चीज़ होती है ना, जो कि हम माने ना माने हर ऑफिस में होती है, तो वो उस तरह की चीज़ें जो होती है ना, जो गॉसिप हो गई कि जो 4 लोग बैठकर एक दफ़ा एक जगह पर बात कर रहे हैं, फिर उसके बाद एक और ग्रुप जो है वो बैठकर सिमिलर टॉपिक सेम टॉपिक के ऊपर किसी और के साथ बात कर रहा है. दैट काइंड ऑफ अ गॉसिप जो है ना, जो इन्वायरमेंट ऑफिस के अंदर जो है ना वो बहुत खराब कर देता है. तो मेरा तो पर्सनली इस चीज़ के ऊपर बड़ा वो रहता है कि वेन एवर आई सी सच थिंग्स, मैं कोशिश करता हूँ कि पोलाइटली उसमें इंटरवेंशन लेकर जो है वो उसको ब्रेक करूँ, और लोगों को कोशिश करूँ कि कोई भी कन्वर्सेशन करनी है तो तमाम पीयर्स मिलकर सामने एक दूसरे के करें, ताकि किसी किस्म की कोई नेगेटिविटी ना फैले. सही. फिर दूसरे सेगमेंट की तरफ आते हैं वासिफ, जिसमें मैनेजिंग योर डायरेक्ट रिपोर्ट्स के बारे में बात करते हैं. दिस आल्सो कैन गेट कॉम्प्लिकेटेड, राइट? समटाइम्स I would like to ask you, what's your leadership style when it comes to guiding and supporting the team? जी रियाज, so again very important. Basically this is where managers either grow या फिर वो उनका जो है ना ब्रेक हो जाता है वहां पर. सो बेसिकली मेरा अगर आप पर्सनल स्टाइल पूछें तो मेरे लिए लीडरशिप जो है वो अगर आप देखें तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, वो है एम्पैथी. उससे स्टार्ट होता है. तो people aren't resources, they are humans with their own stories, their own backgrounds, their own day-to-day lives. Everyone has their own story. Yeah, definitely. So
इट्स लाइक के एक आदमी या आपकी टीम में जो रिसोर्स है, ही और शी माइट हैव अ गुड डे outside of the office, or they might have a bad day as well, and that directly links with how they are going to behave or perform in office that day. So you shouldn't consider them like robots, और उस तरह जो है ना, ये aspect अगर आपके ध्यान में होगा कि they have a life of their own outside of office as well, and which can directly affect how they behave in the office as well. तो इस चीज को कंसिडर करते हुए आपको चीजों को लेना चाहिए. दिस इज माई गोल्डन रूल ऑफ मैनेजिंग एनी टीम मेंबर. दूसरा इसके अंदर एस्पेक्ट जो है वो ये है कि आई डोंट पर्सनली बिलीव इन माइक्रो मैनेजिंग. मेरा तरीकेकार इस तरह होता है कि मैं लोगों को एक टास्क के बारे में बता देता हूँ, उनको डायरेक्शन दे देता हूँ एज मच एज आई कैन. देन व्हाट आई डू इज आई ट्राई टू मेक देम ओन इट. आई चेक इन एज ऑफन एज आई कैन, बट देन आई डोंट वांट टू बेसिकली माइक्रो मैनेज देम एंड लेट देम डू द वर्क ऑन देयर ओन. आपने गुडकोर में तकरीबन मेरे ख्याल से 1 साल तो काम किया है, और आपको अंदाजा होगा. दिस इज व्हाट वन थिंग दैट आई कुड से कि गुडकोर में इट्स बीन लाइक 3 years आई बीन वर्किंग इन दिस कंपनी, और यहाँ पे माइक्रो मैनेजमेंट नहीं है ऑनेस्टली. दे फोकस ऑन द प्रोडक्टिविटी. यू आर गिवन अ टास्क और आप पे ट्रस्ट किया जाता है कि आप वो अपना टास्क जो है गिवन डेडलाइन में पूरा करेंगे. ऐसा नहीं होता कि कोई भी आपके सर पे खड़ा हुआ होता है कि अभी क्या हुआ, हर 15 मिनट में अपडेट्स हो रही होती हैं. ये वो हमने देखा है डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में बहुत ज्यादा माइक्रो मैनेजमेंट होती है, और दिस इज समथिंग दैट आई वुड से कि गुडकोर के अंदर आपने भी काम किया है, आप इसको मेरे ख्याल से ज्यादा बता सकते हो बिकॉज यू वर लीडिंग अ टीम, राइट? तो थोड़ा सा इस पे रोशनी डाल सकते हैं. जी बिल्कुल. और ये मैं इसको आपको इस तरह कंफर्म कर सकता हूँ कि इट्स नॉट लाइक के ये कोई एक लेवल पे होता है. इट बेसिकली स्टार्ट फ्रॉम द टॉप. मैंने देखा है कि जो सीनियर मैनेजमेंट लेवल है वहां से ही इस चीज को जो है ना इस तरीके से लेके किया चलाया जाता है कि दे डोंट माइक्रो मैनेज द सेकंड टियर. सो द सेकंड टियर डजंट माइक्रो मैनेज द लोअर टियर एज वेल. तो ये ऊपर से टॉप टू बॉटम जो है ना, ये एक समझे एक तरह से एक कल्चर जो है ना वो डेवलप हुआ है, और इट्स वेरी गुड. और ये तमाम ऑर्गेनाइजेशन को इस चीज के ऊपर ख्याल करना चाहिए, बिकॉज दैट इज वेरी वेरी डैमेजिंग टू रिसोर्स डाउन द लाइन. कि वो फीलिंग ये आती है कि हम पे वो काम तो दिया जा रहा है लेकिन हम पे ट्रस्ट नहीं किया जा रहा टू डू दैट वर्क. तो इस चीज को बहुत ख्याल रखना चाहिए. माइक्रो मैनेजिंग इज रियली रियली बैड. अच्छा, दूसरी ये भी चीज देखी गई है कि जो लोग हाइब्रिड काम करते हैं, हम लोग ऑब्वियसली गुडकोर में हाइब्रिड वर्किंग मॉडल है. हम लोग 2 दिन ऑफिस आते हैं, 3 दिन रिमोट होता है, और उसके अंदर फिर डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में अगर रिमोट काम करते हैं, जैसे कि मैं आई डोंट वांट टू नेम द कंपनीज, बट मैंने ये सुना है काफी कंपनीज में ऐसा होता है कि अगर आप रिमोट रिसोर्स हैं तो आपके कंप्यूटर में एक एक सॉफ्टवेयर, माइक्रो मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिया जाता है, और उससे आपका पूरी जो है वो ट्रैक किया जाता है. तो इसके बारे में क्या कहेंगे आप? नहीं, वो बड़ा डिस्टोपियन सी फील आती है, और ये मैंने सुना नहीं, मैंने एक्चुअली फेस भी किया है कि आपका अच्छा, एक एक वाकई? घंटा एक एक मिनट जो है वो ट्रैक किया जा रहा होता है, और फिर उसकी बेसिस के ऊपर आपको जो है ना वो आई गेस कुछ सैलरीज वगैरह से रिलेटेड भी कुछ उसके अंदर एस्पेक्ट्स आते होंगे. बट दोज आर काइंड ऑफ वेरी फ्यू एंड फार इन बिटवीन दैट दोज काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस. This is something, and I would say that after COVID, a lot of organizations actually did, change as well. तो वो चीज जो है वो एस्पेक्ट लोगों को समझ आ गया कि हाइब्रिड मॉडल जो है वो पहले तो बहुत बुरा समझा जाता था कि किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है वो लोग घर से कैसे काम कर रहे हैं. तो अब जो है वो आफ्टर कोविड, आई नो थोड़ा बुरे वक्त थे, लेकिन एक उसकी ब्लेसिंग आप ये कह सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशंस को इस चीज के अंदाजा हो गया है कि लोग घर से काम कर सकते हैं. वर्क फ्रॉम होम इज नॉट अ प्रिविलेज एज सच, बट समथिंग दैट कैन बी गिवन वेरी इजीली टू एनी एम्प्लॉई विदाउट थिंकिंग के जी हम वो उनका जो है ना कोई उसका जो ओवरऑल वर्किंग का जो मेथोडोलॉजी है ना उसमें कोई डिफरेंस आएगा. People are now very very equipped to do all these things from work from home environment as well. Good core के अंदर जो है ये 2 days ऑफिस और 3 days होम वाला जो मॉडल है वो आई रियली लाइक इट एज वेल.
बिकॉज उसमें जो है वो 2 days ऑफिस जो है वो एक ह्यूमन इंटरेक्शन का एस्पेक्ट जो है वो भी कवर हो जाता है उसके अंदर। सारा वक्त से आप घरों से बातें बैठ के। करते हैं, थोड़ा गेट टुगेदर होती है, मीटिंग्स हैं, ऑन साइट मीटिंग्स होती हैं, एक अच्छा अच्छा एक एस्पेक्ट है ये भी। बिल्कुल बिल्कुल। और वो एट द एंड ऑफ द डे वी आर ऑल ह्यूमंस, राइट? सो वी नीड ह्यूमन कनेक्शन, कनेक्टिविटी। कंप्लीटली एग्जैक्टली। वर्क फ्रॉम होम जो है ना, वो रिमोट वर्क जो है ना, वो भी कोई इतना अच्छा नहीं कंसिडर किया जाता। और इसलिए ये मॉडल जो है, जो आप लोगों का हाइब्रिड मॉडल है, वो मुझे बहुत पसंद आया था। अच्छा, इसमें हाइब्रिड में ऐसा भी, हमारे यहाँ पे तो ऐसा भी है, आपने देखा है, जैसी बात है, आपने यहाँ पे तकरीबन 1 साल गुजारा है हमारी कंपनी में। आपने अक्सर देखा होगा, मंडे ट्यूसडे को यूजुअली हम लोग ऑफिस आते हैं, राइट? तो हमारी डिफरेंट टेक टॉक्स होती हैं, हमारे डिफरेंट इवेंट्स होते हैं, और डिनर्स होते हैं, लंचेस होते हैं, वो उन्हीं दिनों में हम लोग स्केड्यूल कर रहे होते हैं। राइट। तो व्हाट वुड यू से अबाउट इट, जो आपने एक्सपीरियंस किया है गुड कोर में? तो वो उसका वही फैक्टर है ना कि बेसिकली क्योंकि ये हाइब्रिड मॉडल है और इसके अंदर आप रिमोट वर्क और ऑफिस वर्क का जो मिक्सचर है, तो आई यूज टू काइंड ऑफ लुक फॉरवर्ड टू कमिंग ऑन मंडे और ट्यूसडे ऑनेस्टली, बिकॉज आई ऑलवेज न्यू के एचआर वुड बी यू नो अरेंजिंग सम एक्टिविटी, या कोई टेक टॉक होगी, या फिर किसी किस्म का कोई इवेंट हो रहा होगा। तो मेरे तो पिछले कुछ जितना अरसा भी मैं रहा हूँ, 1 year के करीब, उसमें पूरा साल जो है वो देर वर लॉट्स ऑफ थिंग्स हैपनिंग, और कुछ ना कुछ हो रहा होता था। some people don't like those things, some people want to focus on work, but overall the these kind of activities that are arranged are really good। और hybrid model के अंदर जो है ना, वो ये चीज अच्छी रहती है कि लोगों को भी कुछ, they have to look forward to something the next week as well when they are coming to office। सही सही। राइट। एक चीज कहना चाहूंगा वो ये कि हमने देखा है, हम लोग डिफरेंट स्किल्स को पॉलिश करने की बात करते हैं, हम ये भी बात करते हैं कि टीम को मैनेज कैसे किया जाए, लेकिन ये बात तो मैंने कहीं नहीं सुनी, या बहुत कम होती है, बल्कि शायद होती ही नहीं है, कि अपने बॉसेस को या डायरेक्ट रिपोर्टिंग मैनेजर्स को कैसे मैनेज किया जाए। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है वासिफ? जी बिल्कुल रियाज, वेरी वेल पुट के ये वो एक ऐसी चीज है जो कि ऑफन इग्नोर कर दी जाती है। ठीक है, कि व्हाट्स द सीक्रेट टू वर्किंग इफेक्टिवली विद योर बॉस, राइट? आपने अपनी टीम को कैसे मैनेज करना है, ये हर जगह आप पढ़ेंगे भी, हर जगह आप सुनेंगे भी, लेकिन अपने बॉसेस के साथ कैसे इंटरेक्ट करना है। सो द आर्ट ऑफ मैनेजिंग योर मैनेजर्स, ये एक बड़ी अंडररेटेड स्किल है। और इसके अंदर सबसे ज्यादा जो चीज ध्यान में आती है लोगों के, वो होती है फ्लैटरी। बट दैट्स समथिंग जो कि सिर्फ और सिर्फ बड़े लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए चल सकती है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हियर इज अलाइनमेंट विद योर बॉस। सो व्हाट डज दैट मीन? सो अंडरस्टैंड देयर प्रायोरिटीज, उनको रातों को क्या चीजें जगा रही है, ठीक है ना, कि उनका प्रॉब्लम क्या है, और उस प्रॉब्लम को आप उसको रिजॉल्व करने में उनकी कैसे मदद कर सकते हैं। और उनका थॉट अलाइन योर, प्रोसेस क्या है? हाँ, उनका थॉट प्रोसेस क्या है, वो किस एस्पेक्ट से चीजों को देख रहे हैं। क्योंकि वो एक लेवल ऊपर है आपके, तो उनका जो है ना, वो आपके मुकाबले में थोड़ा ज्यादा बर्ड्स आई व्यू है। तो व्हाट यू नीड टू डू एज एन एज अ रिसोर्स इज अलाइन योर वर्क टू हेल्प सॉल्व द प्रॉब्लम दैट दे आर लुकिंग इनटू। ऑलवेज कीप देम इन द लूप, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली ऑन थिंग्स जहां पर बैड न्यूज देनी है। आप गुड न्यूज तो फॉरन अपने बॉस को लूप इन करते हैं फॉर ऑल ऑफ दोज थिंग्स, बट जहां पर बैड न्यूज भी है, वहां पर भी आपको अपने बॉस को और अपने डायरेक्ट मैनेजर को लूप इन जरूर करना चाहिए, बिकॉज यू डेफिनेटली डू नॉट नो कि वो उस बैड न्यूज की बेसिस के ऊपर आगे किस तरह की चीजों को मैनेज कर रहे हैं। एक तो ये इंपॉर्टेंट चीज हो गई। दूसरा, अगेन थोड़ा सा बाउंड्री रिस्पेक्ट करने वाली चीज है कि वेन एवर यू आर गोइंग इन टू देयर ऑफिस with the problem, don't just drop it। ठीक है, walk into their office with a problem and a possible solution there as well, and timing is everything as well। ये तो एक थोड़ा सा उसमें वो है कि सबको ही पता है कि मंडेज कैसे होते हैं। तो सबसे बुरी खबर लेकर मंडे को सुबह सुबह उनके ऑफिस में, जब उन्होंने बेचारों ने सुबह की पहली चाय भी नहीं पी है, तो मत पहुंच जाए। थोड़ा उनको रिलैक्स होने दें, अपने हिसाब से देखें कि आपको कोई खराब खबर अगर देने लगा है, तो वो अगर सुबह सुबह देगा तो आपको कितना बुरा लगेगा। तो आप भी जो है वो खराब खबर थोड़ा सा डिले के बाद दें। और अगेन जैसा मैंने पहले बोला,
कि बैड न्यूज देना या कोई प्रॉब्लम अपने बॉस के सामने लेकर जाना इज नॉट द इशू। इट्स लाइक कि आप सिर्फ प्रॉब्लम लेकर जा रहे हैं, आपको उस प्रॉब्लम के साथ पॉसिबल सॉल्यूशंस भी लेकर जाना चाहिए। दिस विल बेसिकली मेक यू, इट विल मेक इट इजियर फॉर यू टू अलाइन और हेल्प यू सक्सीड विद देम टुगेदर। सही है, सही है। बस इस सेगमेंट 4 की तरफ आते हैं जिसमें हम बात करेंगे मैनेजिंग इनडायरेक्ट रिलेशनशिप्स। काफी सारी ऐसी रिसोर्सेज ऑब्वियसली आपने टीम्स मैनेज किए हैं, आपको टीम्स रिपोर्ट करती हैं और आप किसी को रिपोर्ट कर रहे होते हो, लेकिन लेट्स टॉक अबाउट द पीपल हु आर नॉट इन योर डायरेक्ट लाइन, लाइक someone in another department, or you don't really report to them, right? So how do you approach working effectively with those people who you don't work with directly? इसको हमारी दुनिया में ना क्रॉस फंक्शनल जाल कहा जाता है, ठीक है। तो ये बेसिकली बिल्कुल। अच्छा खासा डिफिकल्ट हो जाता है इफ यू डोंट नो हाउ टू मैनेज दैट इन लार्जर ऑर्गेनाइजेशन स्पेशली, क्योंकि देर आर सर्टेन रूल्स दैट यू नीड टू टेक इन टू कंसिडरेशन। ऑब्वियसली जैसा आपने बताया कि देर आर नो rules already set up. So I do not report to that person. That person does not report to me. So he does not owe me anything. I do not owe him anything, him or her anything, right? Then, but still, since we are in the same company and there are situations when we have to talk to different departments and we have to interact with them and let basically have some work done by them for your project or for your basically team's work as well. In that case, the most important aspect is that, as I said, कि पहली चीज तो important ये ध्यान में रखनी है कि वो आपको रिपोर्ट नहीं करते और आप उनको रिपोर्ट नहीं करते, तो दे डोंट ओ यू एनीथिंग। तो आपको उनके साथ जो है ना रिस्पेक्ट का जो एलिमेंट है ना, उस चीज को बहुत ज्यादा कंसिडर करना है। आप उनके साथ डायरेक्टली जाकर किसी भी चीज से बात नहीं कर सकते। आपको उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखनी है कि उनकी हायरार्की में उनके बॉस कौन है, या उनको उनका जो मेन लीड है वो कौन है। उसके थ्रू आपको कोशिश करनी चाहिए कि कम्युनिकेशन करें until and unless that leadership group has already communicated with both of your team members that there is going to be a temporary link of communication between you guys. So if the both leadership groups have already aligned, let's say Wasif and Riyaz have to communicate for certain things, then you can go and directly talk to Riyaz, right? Then I can come and directly talk to Riyaz about it. But if that has not happened and I am directly coming to you, that's considered quite disrespectful, right? Because that person might be doing some other thing, वो उनके पास पहले से कोई दूसरा प्रोजेक्ट के ऊपर काम चल रहा होगा, तो they do not have you in their day to day work calendar. So आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि the best thing is to communicate with the managers, let them know for which task you are going to align with them or talk to them, and then let their managers talk to them, get a time slot allotted, and then go and talk to them or interact with them. That's the most important thing. I got it, and very well put, Wasif. Wasif, segment 5th की तरफ आते हैं अब. Let's shift to welcoming new joiners in the company. What's the best way to help a new joiner feel included and set up for success? जी, तो इसके बारे में तो सबसे पहले जो है वो जो बात कहूंगा वो ये है कि थोड़ा ऑकवर्ड होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, आप किसी भी लेवल के ऊपर हो, आप एक बिल्कुल ही फ्रेश रिसोर्स हो जो कि किसी कंपनी को ज्वाइन कर रहा हो, या आप एक कोई सीजन रिसोर्स हो जो कि किसी नई कंपनी को में एंटर हो रहा हो, थोड़ा सा जो पहले फ्यू वीक्स होते हैं दे आर क्वाइट ऑकवर्ड, थोड़े कंफ्यूजिंग से होते हैं। आपको लोगों के नाम नहीं पता होते, उनकी डेजिग्नेशन नहीं पता होती, आपको ये नहीं पता होता कि कौन सा आदमी किस काम के लिए है, कौन सा रिसोर्स जो है वो किन चीज़ों के लिए है। तो उसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है फ्रॉम द अदर साइड इज व्हेन अ न्यू जॉइनर हैज जॉइंड योर ऑर्गेनाइजेशन, what we need to do as a collective is be very welcoming to them. Make the effort to welcome them to your organization, right? Give them context of everything, not just information, right? Basically उनको बताना है कि यूजुअली चीज़ें कैसे होती हैं और किस तरह से की जाती हैं. वी हैव टू बी अ बिट मोर रिस्पेक्टफुल ऑफ एंड मोर फ्लेक्सिबल विद देम, कंसिडरिंग कि वो अभी आए हैं, दे आर लर्निंग द रोप्स
फॉर नाउ। उनको ओवरवेल ना करें, बहुत सारी चीजें उनको जो है ना आहिस्ता आहिस्ता समझ आएंगी, तो उसके अंदर इंफॉर्मेशन भी उनको थोड़ा सा स्लोली दें। और अगर आप एक नए आदमी हैं तो वो उसके अंदर पे डिफरेंट एस्पेक्ट्स आते हैं जिनके ऊपर हम बाद में आएंगे, लेकिन मेनली इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मेक देम फील वेलकम टू योर ऑर्गेनाइजेशन एंड गिव देम सम लॉट ऑफ सपोर्ट इन जेलिंग इन विद द टीम। सही। अच्छा, इसमें एक चीज ऐड करूंगा वासिफ, आपने भी देखा होगा, आप जब नए गुडकोर में आए थे, जब ज्वाइन किया था आपने, हमने एक प्रोग्राम लॉन्च किया हुआ है, इट्स बीन लाइक 3 years नाउ आई वुड से, बडी प्रोग्राम। उसमें क्या होता है कि उसमें जो एक न्यू ज्वाइनर जब आता है हमारी कंपनी में, तो उसको वेलकमिंग फील करवाने के लिए ऑलरेडी उसका बडी सेट कर दिया जाता है, जो कि उसको नेविगेट करवाता है ऑनबोर्डिंग प्रोसेस से लेकर टूल्स एंड सिस्टम्स को समझने में और कंपनी का कल्चर समझाने में, ऑल दैट स्टफ। तो इस पे थोड़ा सा बात करेंगे। आप जब नई आपने ज्वाइन किया था गुडकोर, तो उस वक्त आपको कैसा फील हुआ था? जब आपके बड़ी कौन थे, ये भी एक इंटरेस्टिंग बात होगी। तो अगर आप इसमें थोड़ा सा कुछ बताएं। हाँ नहीं, ये बड़ी सिस्टम बहुत अच्छा है। और बेसिकली जब मैंने कुछ और ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर भी ये चीज़ देखी थी, बट आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी मैंने जब बड़ी सिस्टम का देखा था, बड़ी प्रोग्राम का, तो इट्स रियली गुड इन द सेंस के होता ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल इट मेक्स इट इजियर फॉर द न्यू जॉइनर टू नो हु टू टॉक टू, बिकॉज वो एक तरह से ऑफिशियली जो है ना हैज बीन अलाइंड विद यू कि आपको कोई भी बात करनी है, किसी किस्म के बारे में भी बात करनी है, नॉट ओनली ऑफिस यू नो टास्क रिलेटेड वर्क, एनीथिंग एल्स एज वेल, कि लंच कहाँ करते हैं, ब्रेक टाइम्स कब कब होते हैं, अगर कोई नमाज ब्रेक पे जाना है तो वो कहाँ पर होती है, देर आर सर्टेन क्वेश्चंस। और फिर उसके अलावा आपको अच्छा एचआर में कौन लोग हैं, फाइनेंस के लोग कौन है, आपको पहले महीने के अंदर देर कुड बी मल्टीपल थिंग्स दैट यू वुड बी नेविगेटिंग एट द सेम टाइम एज वेल अपार्ट फ्रॉम योर एक्चुअल वर्क। तो उसमें आपके लिए इजी हो जाता है कि आपको एक बड़ी अलाइन हो जाता है जिसको आप जिसकी जिम्मेदारी ये होती है कि वो आपके साथ जो है वो अटैच रहेगा फ्रॉम डे वन टिल द नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ्स एटलीस्ट, राइट। एंड उसके अंदर आपको वो हर चीज के अंदर आपकी हेल्प आउट करेगा, वो उसकी काइंड ऑफ जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज में से हो जाती है। आई हैव हैड अ बडी असाइंड विद मी, और उस पूरे साल के अंदर जब मैं गुड कोर में रहा हूँ आई हैव बीन अ बडी टू समवन एल्स एज वेल, तो आई नो बोथ साइड्स ऑफ इट। सो इट्स वेरी गुड। एक सबसे एज आई सेड के सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है कि यू डेफिनेटली नो हु टू गो टू, योर गो टू पर्सन फॉर दैट फॉर दोज कपल ऑफ मंथ्स, यू ऑलरेडी नो। तो उसमें आपकी ना वो शाइनेस कम हो जाती है, एंड देन दैट बडीज जॉब इज टू बेसिकली मेक यू कंफर्टेबल एंड गेट यू टू नो ऑल द बेसिक रोप्स ऑफ नेविगेटिंग द कंपनी कल्चर। तो ये बहुत अच्छी चीज है, और आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट टू एवरीवन एल्स जहां पर ये बड़ी सिस्टम नहीं होता उनको इसको अपने पास जो है ना इनकॉर्पोरेट करना चाहिए। Very well put, Wasif. Now let's kind of flip that. What if you are the one joining a new company? You've recently joined a new company in Qatar. तो आप थोड़ा इसमें अच्छे से बता भी सकते हैं। ऑब्वियसली यू आर द आउटसाइडर कमिंग इन, आप नए होते हो, सिस्टम्स और टूल्स को समझने में टाइम लगता है, टीम्स के साथ शुरू में वो इंटरेक्शन नहीं होता जो आगे जाके आपका आता है। तो हाउ डू यू काइंड ऑफ navigate those early weeks? बिल्कुल। इसके अंदर जब आपने जैसे बोला कि when the tables are turned and you are the new joinee, तो दूसरे एंड से तो हमने बात कर ली कि उनको वेलकम करना चाहिए और उनको जो है वो आसानी करनी चाहिए, बट व्हाट यू नीड टू डू एज अ न्यू joinee एज वेल, राइट। एंड यू कुड बी joining at any level of the company. So the first important aspect is initially don't jump into doing everything. You have to start by listening and learning and building trust with your team members, with your bosses, with your cross functional team as well. Get a feel of the culture of your organization. Every organization has a different culture. A large software house might have a different culture, a small software house might have a different culture, uh, a large corporate organization might have a very different culture. There would be a lot of red tapes in those organizations which you might not know beforehand when you are joining them. That I have certainly felt
when I joined this new organization in Doha now. So वो चीजें जो होती हैं उनको थोड़ा सा देखना पड़ता है, आपको उसमें टाइम लगाना पड़ता है. एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैज इट्स ओन रिदम एज वेल. आप एज एन एग्जांपल अगर आप किसी स्टार्टअप की बात करेंगे, दे हैव अ वेरी क्विक रिदम. उसके अंदर हर चीज बहुत तेजी से हो रही होती है, बड़ी फ्लैट सी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है, एवरीवन कैन टॉक टू एनीवन, ओपन सा एनवायरनमेंट होता है, उसके अंदर चीजें बहुत तेजी से हो रही होती है, बिकॉज दैट्स द कल्चर ऑफ अ स्टार्टअप ऑर्गेनाइजेशन. बट अगर आप किसी कॉर्पोरेट कल्चर में जाएंगे तो वहां पे बहुत ही क्लियरली डिफाइंड बाउंड्रीज होती हैं. एंड आपका कोई भी काम जो होता है, आपको शुरू शुरू में, स्पेशली इफ यू आर कमिंग फ्रॉम अ सॉफ्टवेयर और स्टार्टअप काइंड ऑफ अ कंपनी टू अ कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन, आपको फील होगा कि देर आर सो मेनी हर्डल्स, बट देर नॉट हर्डल्स, दे आर एक्चुअली हायरार्कीज. एंड उसके अंदर वो जो प्रोसेस एंड प्रोसीजर्स दिए हुए हैं, दे आर मेंट फॉर समथिंग, राइट? दे माइट सीम लाइक हर्डल्स टू यू, बट उसके बेनिफिट्स हैं. चीजें रिपोर्ट जब हो रही होती हैं या किसी काम को कोई कंप्लीशन की तरफ ले जाने के लिए, क्योंकि वो इतनी लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, तो उनके अंदर आपको इन चीज़ों का ख्याल करना पड़ता है कि कौन सा काम किसको दिया जा रहा है, वो काम क्यों किया जा रहा है, उसके पीछे किसकी अप्रूवल्स हैं. वो सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है. आपने जब न्यू कंपनी ज्वाइन करी है तो आपको जो है वो थोड़ा सा ऑब्जर्व करना है प्रोसेसेस को, और अंडरस्टैंड करना है कि कोई प्रोसेस ऐसा क्यों है. If this was such a practical and honest take on the human side of work, before we wrap, would you like to conclude it? Yeah, in conclusion, Riaz, I would say the golden rule, let's say, is people come before processes. If you treat people well, with empathy, respect, and good timing, the rest I can definitely say, will flow very easily. You don't need to be friends with everyone. That's something that you need to understand. But you need to be fair, approachable, and professional with everyone. And lastly, I would definitely add that is bring some humor to work. Work is already very tough, and be a bit more jolly, a bit more, relaxed in your work environment, especially from a project management perspective. Even if you are in a corporate culture as well, you can definitely make it a bit more relaxed within your team. So try to do that as much as possible. That would be my final take on this. Couldn't agree more, Wasif. Thank you again for joining. This was packed with value. और मुझे पता है आप काफी बिजी चल रहे हैं आजकल कतर में, तो आपका टाइम देने का बहुत शुक्रिया. काफी ज्यादा बातें हुई और अच्छी बातें हुई हमारी. डिफरेंट एस्पेक्ट्स को हमने टच किया, डिफरेंट सेगमेंट्स को हमने टच किया. तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन. Hey, thank you very much, Riaz. Pleasure was totally mine. And I'm sure this will help someone navigate their next, meeting, conflict a little bit better. So happy to help. Awesome. To everyone watching, if you found value in this conversation, don't forget to like, follow, and share the podcast with your network. We'll catch you in the next episode, inshallah. Until then, keep learning and keep growing.